Dear students, so far we have completed 9 chapters of your 12th mathematics. So let us start our new chapter, chapter number 10, which is vector algebra. You must have listened the height of Burj Khalifa is 830 meters and today's temperature in Delhi is 4 degrees Celsius. They describe the magnitude of quantities or characteristics like height and temperature. However, there are many characteristics which cannot be described completely by using just one number. For example, if we are told that an aeroplane is traveling at 500 km per hour, we would like to know the direction in which it is flying. So in this chapter, we shall study vectors, quantities which have magnitude as well as direction, that are very helpful in describing and analyzing many physical situations. Some basic concepts. Scalars. A quantity which has magnitude only and no direction is called a scalar quantity, or simply you can say scalar. To specify a scalar, two things are required only. First, a unit in terms of the scalar is measured, okay, and the second one is a real number which may be positive, negative or 0, okay, and a quantity which has magnitude as well as a direction. A quantity which has magnitude as well as direction is called a vector quantity or simply a vector. For a vector, three things are required. First, a unit, second, a real number and third, a particular direction. Okay, तो ये हमारा स्केलर और वेक्टर है. आपने 11th में ही पढ़ा है, बट फिर भी इसको एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं. इनके कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स के. स्केलर के एग्जांपल आप क्या क्या ले सकते हैं? लेंथ, डिस्टेंस, इसके एग्जांपल हो जाएंगे लेंथ, डिस्टेंस, ओके, और स्पीड, टाइम, ये ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल स्केलर्स के मिल जाएंगे. सिमिलरली वेक्टर्स के एग्जांपल भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. फिजिक्स में भी बहुत सारी क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज आप पढ़ते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, ओके, इसके एग्जांपल हो गए वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ओके, और एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सभी वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल हैं. डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. A portion of a straight line whose end points are known as initial and terminal is called a directed line segment. जैसे कि ये हमने एक एग्जांपल, इसका एग्जांपल ले लिया है. ये AB डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है एंड इट इज रिटन एज AB, और इसके ऊपर आपको क्या लगाना है? एरो लगाना है. ओके, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB हो गया. The directed line segment AB and BA are different. The two end points of directed line segment are not interchangeable. आप ये A और B को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं. The directed line segment is positive or negative according as it is along the direction or to the opposite direction of the directed line. ये इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, according to the directed line. Okay, and every directed line segment has length as well as direction. Magnitude or length, the distance between these two points A and B, ये point A और B के बीच जो distance है, is called the length of directed line segment AB and it is denoted by, इसको कैसे डिनोट करते हैं? इस टाइप से, ये मैग्नीट्यूड ऑफ AB को AB डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB लिख के इसको एब्सोल्यूट वैल्यू का जो साइन होता है वो बना देते हैं. ओके, सो क्लियरली AB एंड BA डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आर डिफरेंट. उनके डायरेक्शन डिफरेंट होंगे बट उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे. मीन्स
length of directed line segment AB equals to length of directed line segment BA. ओके और ये जिसका जो पार्ट होता है जिस लाइन का डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट. ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सपोर्ट. वाइस का बोलते हैं. The representation of a vector. Since a vector has magnitude as well as a direction, it can be represented geometrically by a directed line segment AB. Okay, तो ये AB वेक्टर को हमको रिप्रेजेंट करना है तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकली. So a vector is determined by 2 points A and B such that the magnitude of the vector is the length of the डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी. तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसका उस वेक्टर का लेंथ होगा या मैग्नीट्यूड होगा. ओके, एंड ए इज कॉल्ड ओरिजिन और द इनिशियल पॉइंट एंड बी इज कॉल्ड द टर्मिनल पॉइंट. इस पॉइंट ए को हम इनिशियल पॉइंट और इस पॉइंट बी को क्या कहते हैं? टर्मिनल पॉइंट. Okay, let P be any point in space. एक पॉइंट ले लेते हैं हम स्पेस में. Okay. ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस. आप x y z ये चेंज भी कर सकते हैं बट आप हमारी जो एनसीईआरटी की बुक हो उसमें नोटेशन इसी तरीके से लिया हुआ है. तो एक्स वाई जेड आप यहाँ एक्स वाई जेड ऐसा भी ले सकते हैं या इस टाइप से भी ले सकते हैं. ओके, मीन्स वाई की जगह एक्स रख सकते हैं और ऐसा इसको रोटेट कर सकते हैं और इस टाइप से भी आप ले सकते हैं. लेट पी बी एनी पॉइंट इन स्पेस हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एंड जेड विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट. ये फिक्स पॉइंट जिसको कि हम क्या कहते हैं? ओरिजिन. देन द वेक्टर ओपी वेक्टर, ये पी को आप किससे ज्वाइन कर दे? ओ के ओ से ज्वाइन कर दे. देन द वेक्टर ओपी इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट पी. ओके, ये जो पी को आप ओ से ज्वाइन कर दीजिए. देन द वेक्टर ओपी इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर और शॉर्ट में हम इसको लिख देते हैं पी बी ऑफ अ पॉइंट पी. The vector OP is usually denoted as R. ठीक है, so R equals to आप इसको क्या लिख सकते हैं? R equals to, अच्छा ये क्या R वेक्टर होगा यहाँ. ठीक है, R equals to मैग्नीट्यूड ऑफ OP. किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, जैसे ए बी वेक्टर है. ओके, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम क्या लिखते हैं? ए बी वेक्टर लिख के ऐसा मॉडुलस बना देते हैं. ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए बी. देन मॉडुलस एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम और इसको सिंपली ए बी सी ऐसा कुछ हम लिख देते हैं. ओके, तो कोई भी आप नोटेशन यूज कर सकते हैं. यहाँ आर लिखा है मैंने और वेक्टर नहीं बनाया, इसके ऊपर डायरेक्शन नहीं दिया, इसको एरो नहीं बनाया है. इट मीन्स ये क्या मैग्नीट्यूड है. ओके, सो R इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ OP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये बहुत छोटी चीजें हैं जो आप लोगों ने पढ़ी है 11th में. ठीक है, ये द पॉइंट P इज कॉल्ड द टिप. ये पॉइंट P को हम क्या कहते हैं? टिप और एंड पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट ऑफ द पोजीशन वेक्टर OP. एंड O इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट. इसको हम P को हम टिप भी कहते हैं. Direction cosines of a vector. Let P, X, Y, Z be a point in a space which makes angles alpha, beta and gamma with X, Y with the positive direction of X, Y and Z axis.
then this angle alpha, beta and gamma are called direction angle. Then the angles alpha, beta and gamma are called direction angle. डायरेक्शन एंगल्स. देखिए ये पॉइंट P देखा था हमने. देखिए ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है अल्फा, और y एक्सिस से बीटा, और z एक्सिस से गामा. Then this alpha, beta and gamma are called direction angles, and the cosines of these angles, and the cosines of these angles, and the cosines of these angles ओके. तो कोसाइन इनके ले लेते हैं. क्या क्या हो जाएंगे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ vector OP, of vector OP, and these are usually denoted by L, M and N. Means L equals to cos alpha, M equals to cos beta and N equals to cos gamma. So L, M and N are direction cosines of a vector. Let P be a point here whose coordinates are x, y and z, and let O be the origin. O को P से ज्वाइन कर देते हैं, and alpha, beta and gamma are the angles made by this OP with x, y and z axis, x, y और z. ये y एक्सिस है तो ये बीटा एंगल होगा, और ये अल्फा, और ये एंगल हो गया गामा. ओके, अल्फा, बीटा, गामा एंगल भी डायरेक्शन एंगल्स. सो आप इसको, इस फिगर को कैसे समझ सकते हैं? आप जिस रूम में खड़े हैं या बैठे हैं, देखिए उसके किसी कॉर्नर को आप ओरिजिन सपोज कर लीजिए. तो कौन सी कॉर्नर को? जो फ्लोर में है. ओके, जो टॉप में है, छत में, उसको नहीं. तो उस कॉर्नर को आप ओरिजिन सपोज कर लीजिए, और उस वहां से एक डायगोनल आप खींचिए दूसरे साइड, अपोजिट साइड में जो कॉर्नर है उसमें. ओके, ऐसे P से आप x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए. ओके, जैसे आपने ये P से A पर x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मीन्स इसको यहाँ से ये एक 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन फिगर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टफ होगा. ये पॉइंट सपोज A है. ओके, ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा. ये एंगल PAO इक्वल्स टू ये 90 डिग्री होगा. ठीक है, ये 90 डिग्री होगा. और ये तो क्लियर है. एंगल AOP इक्वल्स टू ये कितना है? अल्फा. तो यहाँ से cos अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये दिख रहा होगा ट्रायंगल. इसको अलग से आप बना सकते हैं चाहे तो. ट्रायंगल बना लीजिए. ठीक है, ये एंगल है अल्फा. तो अल्फा एंगल कहाँ पे बन रहा है? O पर. ठीक है, और ये 90 डिग्री यहाँ पर. मीन्स ये पॉइंट कौन सा होगा? A. और ये पॉइंट हो गया आपका P. सो cos अल्फा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, P से एक्स वाई जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं. तो ये हो गया PA, PB और PC. ठीक है, ये क्या है थोड़ा सा ओके. तो ये PB, तो ये एंगल PAO क्लियर है. ये कितना? 90 डिग्री है ना. ऐसे ही PBO 90 डिग्री और PCO ये भी 90 डिग्री होगा. आप इमेजिन करके देखिए. आप चाहे तो अपने जो रूफ पे जो फैन है उसके डोम को आप एक कॉर्नर कौन से मिला दीजिए, और वहां से एक्स, वाई और जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए. ठीक है, ये P का कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड है. मीन्स ओरिजिन से
एक्स एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस चलिए और उस एक्स डिस्टेंस कहां पर आ रहा है, ए पर आ रहा है, उस ए को आप पी से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो वो ओ ए क्या होगा, एक्स, ये ओ ए होगा आपका एक्स और ओ बी होगा वाई और ओ सी होगा जेड। तो ये ओ ए कितना हो गया, एक्स। सो कॉस अल्फा इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ पी। तो ओ ए क्या है, एक्स, और ओ पी मीन्स कितना है, ओ पी को क्या लिखा था हमने, आर। सो कॉस अल्फा इक्वल्स टू एक्स बाई आर, और यू कैन राइट एल इक्वल्स टू एक्स बाई आर। सिमिलरली एम इक्वल्स टू आ जाएगा आपका वाई बाई आर, और एन इक्वल्स टू आ जाएगा जेड अपॉन आर, ये एन, सॉरी, ओके। सो एक्स इक्वल्स टू क्या मिल गया, एल आर, वाई इक्वल्स टू एम आर, एंड जेड इक्वल्स टू एन आर. So these numbers x equals to LR, MR and NR, which are proportional to डायरेक्शन कोसाइंस DCs. ओके, डायरेक्शन कोसाइन को हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, DCs भी लिख देते हैं. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर OP are called direction ratios. Of vector OP और R vector लिख सकते हैं. Okay, and direction ratios are usually denoted by A, B and C. Denoted by small a, small b and small c. Okay, so A equals to LR, A equals to LR, B equals to MR and C equals to what, NR. Some important points. First, coordinates of point P can be written as LR, MR and NR. ये हमने देखिए ऊपर इसको फाइंड किया था, x इक्वल्स टू LR, y इक्वल्स टू MR एंड z इक्वल्स टू NR. तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, z. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, LR, MR और NR ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है. एंड L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये इसका प्रूफ भी हम देख सकते हैं. ओके, कैसे, सिंस L इक्वल्स टू x बाई R, M इक्वल्स टू y बाई R एंड N इक्वल्स टू z अपॉन R. तो इसमें पुट कर देते हैं, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर और न्यूमरेटर आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो देखा था हमने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, R इक्वल्स टू क्या होता है, x स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मीन्स R स्क्वायर हो गया, रूट एलिमिनेट हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल होगा, ये क्या हो गया, कैंसिल. So that's why square and sum of direction cosines equals to 1. Therefore, L square plus M square plus N square equals to 1, or cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. Third, if direction ratios are given, if A, B and C are direction ratios of vector, any vector, suppose AB vector, then its direction cosines DCs of this vector AB are, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, A अपॉन रूट ओवर सम ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कॉमा B अपॉन रूट ओवर सम ऑफ A स्क्वायर
C upon root over sum of A. Okay. Types of vector. First, zero vector. Zero or null vector. A vector whose magnitude is 0 is called zero vector. A vector magnitude 0 is called a zero vector. जीरो वेक्टर में इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं, कोइंसाइड होते हैं. ओके, सो अ वेक्टर मैग्नीट्यूड 0 इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर. इस जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? किसी वेक्टर में दो चीज़ें होनी ज़रूरी है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन. अब जीरो वेक्टर हो गया, उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए, कोइंसाइड हो गए, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो आर्बिट्री डायरेक्शन होता है. आप ये कह सकते हैं कि वो किसी भी दिशा में उसको आप ले सकते हैं. एंड इट मे बी रिप्रेजेंटेड एज आप इसको लिख दे ए वेक्टर, ओके, बी वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं. सेकंड, प्रॉपर वेक्टर. एनी नॉन जीरो वेक्टर इज कॉल्ड अ प्रॉपर वेक्टर. सो अ वेक्टर ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर वेक्टर इफ इट्स मॉड्यूलस इज 0 और इट्स मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल्स टू 0. सॉरी, its modulus is not equals to 0 or its magnitude is not equals to 0. Unit vector. A vector A is called a unit vector if its magnitude is 1. Magnitude or modulus of this vector is 1, then it is called unit vector. It is represented as ए कैप. इसके ऊपर एक ऐसा एक कैप लगा देते हैं. ओके, तो ए यूनिट वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन इट्स मॉड्यूलस. co-initial vector. Two or more vectors are called co-initial if they have same initial point. ये देखिए, जैसे तीनों वेक्टर ए बी सी, यहाँ पर क्या है? को इनिशियल वेक्टर है, क्योंकि इनके इनिशियल पॉइंट क्या है? यहाँ पे सेम है. ये पॉइंट सपोज आपको लिख दे. ओके, सो दीज आर को इनिशियल वेक्टर. इक्वल वेक्टर्स. टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स एंड रिटर्न एज ए इक्वल्स टू बी if they have first equal magnitude, second same or parallel supports, and third same direction. For example, ये देखिए, ये तीन वेक्टर है, ये वेक्टर ए बी और ये इसको हम स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर दिए हैं, वेक्टर सी डी और वेक्टर बी एंड वेक्टर ई एफ. तो इनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल है और सभी का डायरेक्शन देखिए सेम डायरेक्शन में. So we can write here vector A equals to vector B equals to vector C, or AB vector equals to CD vector equals to EF vector here. Okay. Collinear vectors. Two or more vectors are called collinear vectors if they have same or parallel supports irrespective of their magnitude and direction. Okay, so then these two or more vectors are called collinear vectors if they have same or parallel supports. Similarly, coplanar vectors. Three or more vectors which lie in the same plane or parallel to the same plane. Okay, ये और होगा, which lie in the same plane or parallel to the same plane are called coplanar vector. So if two vectors are parallel or perpendicular, then these two vectors will always be coplanar vectors. ठीक है, दो वेक्टर आप परपेंडिकुलर हो एक दूसरे को या फिर पैरेलल हो, वो हमेशा कोप्लानर ही होंगे, क्योंकि वो दोनों से
दोनों को कंटेन करने वाला एक प्लेन हम बना सकते हैं। ओके, फ्री और लोकलाइज्ड वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, जिसको आप मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे ये एक वेक्टर है स्पेस में कहीं पर, सपोज ये भी एक वेक्टर है, इसको आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इसको ए बी वेक्टर को सपोज मैं बिल्कुल इसी के पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, देन दिस वेक्टर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। और लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, जिसका कि पोजीशन फिक्स होता है, उसको आप जो मूव नहीं कर सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, लेट ए बी अ वेक्टर, देन नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी इज बी ए, means a vector having the same magnitudes as that of a given vector but directed in the opposite sense is called the negative of the given vector। यहाँ ए बी का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, बी ए। सो ए बी इक्वल्स टू, वी कैन राइट ए बी इक्वल्स टू सपोज ए वेक्टर, देन बी ए वेक्टर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। ओके, और ए बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी ए। जब ये आप इसको चेंज करते हैं इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को, तो क्या हो जाता है, ये माइनस बी हो जाता है। सो इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। ओके, या दो वेक्टर हम ए और बी को क्या लेते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, दो साइड, इस दो साइड्स को इस ट्रायंगल के ए बी। ये ट्रायंगल हो गया, सपोज आपका ओ ए बी ले लेते हैं, ओ ए और बी। सो दस इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two sides of a triangle taken in order, then their sum resultant C is represented by the third side taken in the opposite order। तो ये OB किसको रिप्रेजेंट करेगा, C वेक्टर को, which is the sum of these two vector, which is the sum of these two vector, and this law is called triangle law। Properties of vector addition। First, commutative addition of two vectors always follow commutative law। देखिए ये कैसे, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ओके, ओ ए सी, सो देयर रिजल्टेंट विल बी वेक्टर सी, ये इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर सी। लेट अस कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम। इसको ठीक से बना लेंगे आप लोग, और ओ ए सी इसको लिख दिया हमने बी। तो ये ओ ए वेक्टर इक्वल्स टू, ओ ए वेक्टर इक्वल्स टू ए, एंड ए सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिया, बी। सो ओ सी वेक्टर इक्वल्स टू सी वेक्टर। तो सी वेक्टर यहाँ से क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी। ओके, now BC is parallel to OA, BC is parallel to OA, और दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है ना, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि पैरेललोग्राम के साइड सही है। सो BC इक्वल्स टू, BC वेक्टर इक्वल्स टू OA वेक्टर। तो BC क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। ओके, ये वेक्टर BC वेक्टर को आप वेक्टर ए लिख सकते हैं, एंड सिमिलरली ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू ए सी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। फिर से इस ट्रायंगल ओ बी सी में ट्रायंगल आप लगाएंगे, तो यहाँ पे और आप लिख दीजिए क्या, ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू ए सी वेक्टर, मीन्स वेक्टर बी। सो फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी सी, OB plus BC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, OC। तो OB इक्वल्स टू B वेक्टर एंड BC इक्वल्स टू A वेक्टर इक्वल्स टू C वेक्टर। OC क्या हो गया, C। तो यहाँ से देखिए C इक्वल्स टू A प्लस B आया था फर्स्ट, और सेकंड B प्लस A इक्वल्स टू C। दैट्स वाई
we can write a plus b vector equals to b plus a vector. Vector addition follows associative law, means a plus b plus c vector equals to a plus b vector plus c vector. चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं हम. सो टेक एनी पॉइंट O and let OA vector equals to OA A vector, AB equals to AB vector को ले लिया B vector and BC vector equals to BC vector equals to C vector. ये आपका A vector हो गया और ये B vector और ये C vector. ओके, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, a प्लस बी प्लस सी. सो b प्लस सी वेक्टर, b प्लस सी वेक्टर, b वेक्टर प्लस सी वेक्टर, b इक्वल्स टू b वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, ए बी प्लस c वेक्टर है आपका बी सी. सो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये देखिए ए बी प्लस बी सी, ट्रायंगल लॉ से क्या हो जाएगा, ए सी के इक्वल. ये आ गया ए सी के इक्वल. कौन से ट्रायंगल से, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी. ओके, एंड ए सी वैक्टर, ये क्या ए बी प्लस बी सी क्या आ गया आपका ए सी वैक्टर. सो लेफ्ट हैंड साइड मीन्स ए प्लस बी प्लस सी वैक्टर, ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी वैक्टर. ए वैक्टर इक्वल्स टू ओ ए वैक्टर और बी प्लस सी ये कितना आया था, ए सी वैक्टर. ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ सी. ओ ए प्लस ए सी इक्वल्स टू ओ सी. ये कौन से ट्रायंगल से आ गया, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए सी. ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में क्या क्या है, ए प्लस बी वैक्टर, A vector equals to OA and B vector equals to AB vector. So OA plus AB equals to OA plus AB equals to OB vector from which triangle, from triangle OAB. Okay, अब ये राइट हैंड साइड पूरा फाइंड कर लेते हैं हम. राइट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या था, ए प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर. सो ए प्लस बी वैक्टर इक्वल्स टू ये आ गया ओ बी वैक्टर एंड सी वैक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी ओ बी वैक्टर आ गया और सी वैक्टर को क्या क्या लिखे थे, बी सी वैक्टर, ए प्लस बी सॉरी ओ बी वैक्टर और ये बी सी. ठीक है, अब ओ बी प्लस बी सी, ओ बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ओ सी वैक्टर. ये कौन से ट्रायंगल से आ रहा है, फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी सी. ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन कौन सा हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन. दोनों से देखिए, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, ओ सी वैक्टर. देयरफॉर ए प्लस इन ब्रैकेट बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी वैक्टर plus C vector, and this property is called associative property. Next, existence of additive identity. Since a vector plus null vector or null vector plus a vector equals to vector a, so null vector or zero vector is called additive identity. Okay, additive identity, multiplicative identity आप समझते हैं. सिंपली आप रियल नंबर्स के लिए लेते हैं. सो एनी नंबर सपोज 2 प्लस वॉट इक्वल्स टू अगेन 2, देन जो नंबर आप इसमें ऐड करेंगे जिससे क्या सेम नंबर मिले, तो कौन सा नंबर होगा, 0. ओके, और 0 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या आएगा, 2. देन 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर्स. ओके, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 2 इंटू वॉट इक्वल्स टू 2 और 1 इंटू सॉरी any number into 2 equals to again 2. Then this number
विल बी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो क्या आएगा यहाँ पे 2 इंटू 1, ओके 2 इंटू 1 और 1 इंटू 2 क्या आएगा 2। सो 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रियल नंबर्स। सिमिलरली एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स ए प्लस नेगेटिव ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या आता है एडिटिव आइडेंटिटी, देन दिस माइनस ए वेक्टर इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे कि आप रियल नंबर्स में देखिए 2 प्लस वॉट इक्वल्स टू एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स 0 मिले आपको, तो क्या इसमें क्या ऐड करेंगे -2। ठीक है, सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 का 2 इंटू वॉट इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। सो 2 में किसका मल्टीप्लिकेशन करें कि 1 आएगा, सो 1/2। सो 1/2 इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2, -2 is the additive inverse of 2. Multiplication of a vector by a scalar. Let a be any vector and lambda be any real number. Lambda be any scalar. Okay. Then lambda a is defined as a vector whose magnitude is modulus of lambda times the modulus of vector a. Means lambda कोई वेक्टर a है जिसमें आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो ये भी क्या होगा, दिस विल बी अ वेक्टर। और कैसा वेक्टर होगा, जिसका कि मैग्नीट्यूड जब आप फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, दिस विल बी मॉडुलस ऑफ लैम्डा इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। ओके, जैसे कि ए की वेक्टर आप ले लेते ये ए, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये सेम डायरेक्शन में ये 2a वेक्टर हो जाएगा। आप 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1/2 वेक्टर ए। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, ये सपोज ये 1 यूनिट का था, ये कितने 3 यूनिट का हो जाएगा, 3 इंटू ए वेक्टर, और सेम डायरेक्शन में होगा। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, लेट पी एक्स वाई बी अ पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स ओ वाई। तो एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं हम एक्स ओ वाई, ये एक्स ओ वाई मीन्स इसको आप आगे और बढ़ा सकते हैं, एंड पी बी अ पॉइंट पी एक्स वाई। ओके, पी बी अ पॉइंट in the coordinate plane x o y and I and j be the unit vectors along x axis and y axis. x axis के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर I है और y axis के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j है। तो P से इस x पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लेट इट इज PM, और y पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं P से, ये क्या हो गया PN। लेट PX y be a point on first quadrant or XOY plane, XOY plane. So draw PM perpendicular to OX and PN perpendicular to OY. सो PM इक्वल्स टू OM इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट क्या है आपका XY, तो OM इक्वल्स टू हो जाएगा X, और NP इक्वल्स OM और NP इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, OM इक्वल्स टू X इक्वल्स टू NP, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका PM और ON इक्वल्स टू Y इक्वल्स टू MP। सो OM वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से OM वेक्टर इक्वल्स टू उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा ये XI, और ON वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा YJ, मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो है क्या है वो J, तो YJ हो गया। ठीक है, तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, किसको, O को P के साथ, OP को ज्वाइन कर दिया ये। ओके, सो ये OM वेक्टर क्या है XI, और
MP vector equals to ON vector means इस डायरेक्शन में ये है YJ. Okay, so from triangle law, from triangle OMP ये क्या हो जाएगा, OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर, MP वेक्टर इक्वल्स टू OP वेक्टर. ओके, और OM क्या है, XI, और MP क्या है, YJ इक्वल्स टू OP वेक्टर. सो OP वेक्टर विच इज R वेक्टर इक्वल्स टू XI प्लस YJ. ओके, ये वेक्टर आ गया XI प्लस YJ. Here X and Y are scalar component of this vector, and XI comma YJ, इसमें कैप लगाना ना भूले, XI comma YJ are called vector component of OP vector or R vector. Okay, if OP vector is, if P is in space or in 3 dimensions, so OP vector will be XI plus YJ plus ZK. So X, Y, Z will be a scalar component and XI, YJ and ZK will be vector component of vector OP. Representation of a vector in terms of position vector of its endpoint. Let PQ be a vector. एक वेक्टर ले लेते हैं PQ, ये पॉइंट P और Q. यहाँ पर एक रेफरेंस ऑफ ओरिजिन ले लिया, ये O और ये. ओके, ये PQ वेक्टर. सो OP, ये PQ वेक्टर हो गया. हम क्या देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स एंड पॉइंट. सो PQ फ्रॉम ट्राइंगल OPQ, फ्रॉम ट्राइंगल OPQ, OP प्लस PQ, OP प्लस PQ इक्वल्स टू, OP प्लस PQ क्या आएगा, OQ वेक्टर. सो PQ वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ रहा है यहाँ पर, PQ वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा OQ माइनस OP वेक्टर. सो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज OQ वेक्टर इक्वल्स टू, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनस माइनस OP वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट. ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, हमेशा हम यूज़ करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए ऐसा क्यों लिखते हैं. कहीं आया AB वेक्टर, तो AB वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर. ओके, ये लेट्स सी सेक्शन फार्मूला. ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनसे 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट है. इनके बिना आप दूसरे जो वेक्टर्स को आप समझ नहीं पाएंगे जब आप आगे स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे वेक्टर्स का. ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये सब में यूज़ होंगे ये इनके. सो सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फॉर्मूला फर्स्ट फॉर इंटरनल डिवीज़न जब करेगा तो सेक्शन फार्मूला हमारा क्या बनेगा, लेट AB बी 2 पॉइंट्स एंड P डिवाइड्स AB इन द रेशो m/n. ओके, एंड OA इक्वल्स टू A वेक्टर, OB इक्वल्स टू B वेक्टर. P डिवाइड्स AB internally in the ratio m/n.
इन द रेशो m/n। ओके, ये दिख रहा है इंटरनल डिवीज़न हो रहा है। लेट ओ बी एनी पॉइंट, इनके पोजीशन वेक्टर क्या है a और b, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं और p को भी उससे ज्वाइन कर दिया। ओके, देन since p divides ab in the ratio m/n, so ap upon pb will be equals to m by n। so nap equals to क्या आ जाएगा mpb, nap equals to npb, nap vector, so nap vector equals to mpb vector। ओके, सो nap वेक्टर को आप क्या ले सकते हैं op माइनस oa वेक्टर, और इसको लिख सकते हैं mpb वेक्टर को ob वेक्टर माइनस op वेक्टर। सो ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, n op वेक्टर माइनस n oa वेक्टर इक्वल्स टू m ob वेक्टर माइनस m op वेक्टर। ओके, तो op कॉमन ले लें आप, op कॉमन ले लें तो यहाँ से आ गया n, और देखिए ये माइनस m op इस साइड आएगा तो हो जाएगा ये प्लस m, और यहाँ से हम कॉमन ले लें ob को, सॉरी इसको ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा NOA प्लस MOB। सो OP वेक्टर कैन बी रिटर्न एज OP वेक्टर इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा OP वेक्टर इक्वल्स टू MOB प्लस NOA अपॉन M प्लस M। ये सेक्शन फार्मूला हुआ किसके लिए, इंटरनल डिवीज़न के फॉर्म में। जब इंटरनल डिवीज़न होता है तब ये सेक्शन फार्मूला। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ होगा आपको। नेक्स्ट, व्हेन P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली, व्हेन P डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n, m/n। अब यहाँ क्या होगा, P इन इसके बाहर होगा। सपोज़ ये पॉइंट A है और ये B है, तो P कहाँ होगा, इनके बाहर होगा। आप इस साइड लिख दीजिए या A के राइट साइड भी लिख दीजिए, ये P। यहाँ कहीं पर पॉइंट O ले लेते हैं, O को इस सभी से ज्वाइन कर दीजिए। ओके, तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, सिंस P डिवाइड्स AB इन द रेशो m/n, ओके, m/n में ये डिवाइड कर रहा है, तो फिर क्या आ जाएगा ये हमारा, देयरफॉर AP ये m/n में डिवाइड कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ये m, और ये रेशो कितना हो जाएगा, ये इतना जो है मीन्स P से B तक, ये आपका n होगा। ठीक है, सो AP अपॉन BP इक्वल्स टू हो गया m अपॉन n। सो NAP इक्वल्स टू MBP। सो NAP वेक्टर इक्वल्स टू MBP वेक्टर, और NAP वेक्टर को क्या लिखेंगे आप, OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर इन इक्वल्स टू MBP वेक्टर को लिख सकते हैं OP वेक्टर माइनस OB वेक्टर। अब यहाँ से फिर ब्रैकेट ओपन करके आप OP वेक्टर को एक साइड ले आइए और कॉमन ले लीजिए। सो OP वेक्टर कॉमन ले लिया तो ये हो गया N OP, और यहाँ से ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस MOP, तो ये कॉमन OP हो गया। सो N माइनस N रह गया, और इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये हो जाएगा माइनस NOA इधर आ गया तो प्लस NOA वेक्टर और माइनस MOB वेक्टर। ठीक है, सो OP वेक्टर इक्वल्स टू, आप माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा MOB वेक्टर माइनस NOA वेक्टर
डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेके डिवाइड कर दे रहे हैं, ये माइनस m n, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो ओ पी वैक्टर इक्वल्स टू ये क्या आ गया, एम ओ बी वैक्टर माइनस एन ओ ए वैक्टर, ओके, डिवाइडेड बाई m माइनस n। सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपको, ओके। तो इसको यूज़ कैसे करना है, सपोज़ यहाँ पर एक पॉइंट ए है, ये बी है, ये पॉइंट पी इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सपोज ए का पोजीशन वेक्टर ए और बी का पोजीशन वेक्टर बी, सो पी का हमको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, सो ओ पी वैक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू ओ बी वैक्टर प्लस 2 इंटू ओ ए वैक्टर अपॉन m प्लस n मीन्स 3 प्लस 2, है ना, यही था कि नहीं। सेक्शन फॉर्मूला देखिए, इंटरनल डिवीजन के फॉर्म में क्या था, एम ओ बी इन प्लस एन ओ ए मीन्स ये 3 इंटू क्या हो जाएगा ओ बी वैक्टर और 2 इंटू ओ ए वैक्टर अपॉन 3 प्लस 2, ये जब इंटरनल डिवीज़न होगा तो, और एक्सटर्नल डिवीज़न होगा तो क्या हो जाएगा, ये बीच में ये माइनस साइन हो जाएगा उस कंडीशन में, ओके। तो इस तरीके से सेक्शन फार्मूला को यूज़ करना है आपको। ये सी if p is the midpoint, if p is the midpoint of AB, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये ए बी यहाँ पर एक पॉइंट P है, इसका मिड पॉइंट है, तो सेक्शन फॉर्मूला से आप इस P का पोजीशन वेक्टर OP इक्वल्स टू मीन्स इस कंडीशन में क्या हो गया, m इक्वल्स टू n, तो OP वेक्टर क्या था, व्हेन P डिवाइड्स AB इन द रेशो m इज टू n, सो m ओ बी प्लस n ओ ए अपॉन m प्लस n, यहाँ m इक्वल्स टू n है, तो ये m ओ बी, n को भी हम m रख दे रहे हैं, m ओ ए अपॉन ये हो गया m प्लस m, m कॉमन ले लेते हैं, तो m ओ बी प्लस ओ ए डिवाइडेड बाई 2m, 2 mm कैंसिल आउट, और ये क्या रह जाएगा, ये 2 रहेगा, सो ओ पी वैक्टर विल बी ओ ए प्लस ओ बी डिवाइडेड बाई 2। ये सेक्शन फॉर्मूला हमारा यूज़ करके हमने मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड किया, ओके। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.2। 10.1 के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप जो है डेफिनेशंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद वो क्वेश्चन आप ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, फर्स्ट ए वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू रूट ओवर स्क्वायर एंड सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा √3। इसका सेकंड है बी वेक्टर इक्वल्स टू, ये फर्स्ट था, ये सेकंड, बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस 7j माइनस 3k, सो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर एंड सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के मीन्स 2 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 4 और ये हो गया 49 प्लस 9, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 9 प्लस 18 प्लस 4 22, 2 प्लस 4 6, 62, ये आपका होगा आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो ऐसे 2 वेक्टर लिखने हमको जिनके की क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, तो वेक्टर ए और बी, क्या लिखे हैं ऐसे वेक्टर जिनके सेम मैग्नीट्यूड हो, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं, सपोज इसको लिख दिया मैंने 2i प्लस जे माइनस 3k, और ये ले लिया 3i माइनस जे प्लस 2k, ओके। तो इसका मैग्नीट्यूड देखिए क्या आएगा,
रूट ओवर 4 + 1 + 9 मीन्स कितना आ गया √14 और मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल्स टू रूट ओवर 9 + 1 + 4 तो 10 + 4 कितना हो गया 14। तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है सेम। थर्ड है ऐसा वेक्टर लिखना है, ऐसे दो वेक्टर लिखने हैं, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, टू डिफरेंट vectors having same direction, ओके। तो क्या ले लें वेक्टर को, सपोज ए वेक्टर मैंने ले लिया i + j + k, आप बी वेक्टर ले लीजिए 2i + 2j + 2k। तो इनके डायरेक्शन सेम होंगे, डायरेक्शन सेम होंगे मीन्स इनके डायरेक्शन को साइन फाइंड करके देखते हैं। तो डायरेक्शन को साइन कैसे फाइंड करेंगे इनके, सो कॉस अल्फ़ा और L इक्वल्स टू क्या होता है a अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा रूट ओवर 1 + 1 + 1 मीन्स √3। ओके, इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो L इक्वल्स टू डायरेक्शन को साइन पाने के लिए क्या करेंगे, L इक्वल्स टू क्या होता है a अपॉन रूट ओवर सम ऑफ a स्क्वायर, m इक्वल्स टू रूट ओवर सम ऑफ a स्क्वायर एंड n इक्वल्स टू, ये m इक्वल्स टू था सॉरी, ये m कर लेते हैं इसको, m इक्वल्स टू और n इक्वल्स टू lm n इक्वल्स टू c अपॉन रूट ओवर सम ऑफ a स्क्वायर और ये क्या होगा b। a b c आर दी डायरेक्शन रेशोस। तो डायरेक्शन रेशोस कहाँ से आते हैं, आई जे के जो इस वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है, ठीक है। सो a इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 1 अपॉन रूट ओवर सम ऑफ a स्क्वायर मीन्स ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a, ये कितना आया √3, L √3 आया और m इक्वल्स टू भी सेम आएगा 1/√3 और n इक्वल्स टू भी क्या आ जाएगा 1/√3। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड b का क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू रूट ओवर 2 स्क्वायर मीन्स 4 + 4 + 4 मीन्स 3 × 4 और 2√3। तो इसके डायरेक्शन रेशोस, डायरेक्शन कोसाइंस L इक्वल्स टू सेम a अपॉन रूट ओवर सम ऑफ a स्क्वायर और m इक्वल्स टू a अपॉन b अपॉन क्या लिख सकते हैं आप चाहे तो इसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर एंड n इक्वल्स टू c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो L इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है, इसके स्केलर कंपोनेंट्स 2 2 2, सो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 2, 2 अपॉन रूट ओवर सम ऑफ a स्क्वायर, ये कितना आया 2√3। ओके 2√3, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 2 कैंसिल आउट, सो L इक्वल्स टू क्या आया 1/√3, m इक्वल्स टू 1/√3 एंड n इक्वल्स टू 1/√3, ये सेम आया। तो देख लीजिए दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस भी क्या आ रहा है सेम आ रहा है, दैट्स वाई देयर डायरेक्शंस विल बी सेम। So these are the examples of two different vectors having same directions. Question number 4. Find x and y if these two vectors are equal, means 2i plus 3j equals to xi plus yj. तो यहाँ से आप इक्वेट कर लीजिए, सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 एंड y इक्वल्स टू आ गया 3। ओके, बहुत इजी से क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द स्केलर एंड vector components of the vector with initial point 21 and terminal point -5 7। ये 5, सपोज इनिशियल पॉइंट को मैं P से लिख दूं, उसके कोऑर्डिनेट्स है 21 और Q क्या है टर्मिनल पॉइंट -5 7। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिए, सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स P एंड Q, whose coordinates are x1 y1 and x2 y2, okay। So PQ vector in this condition, position vector of PQ is
x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे। तो ये पी क्यू वैक्टर क्या आ जाएगा यहाँ से, पी क्यू वैक्टर इक्वल्स टू ये x1 y1 x2 y2 मीन्स माइनस 5 माइनस 2i प्लस 7 माइनस 1j मीन्स माइनस 7i प्लस 6j। ये आपका होगा आंसर। ओके, ये पी क्यू वैक्टर हमने फाइंड कर लिया, बट इसमें बोला स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट ये हमको लिखने थे। तो स्केलर कंपोनेंट इसके क्या क्या हो जाएंगे, -7 और 6, और वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा -7i और 6j। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ वेक्टर्स a b एंड c। तो इसका सम फाइंड करना है, a प्लस बी प्लस सी वैक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, i माइनस 2i प्लस i, 2i माइनस 2i, ये क्या आ जाएगा 0i, और माइनस 2j प्लस 4j प्लस 6j मीन्स माइनस 8j प्लस 4j, ये आ गया माइनस 4j, और k प्लस 5k 6k माइनस 7k कितना आ जाएगा -k। तो इसको हम और इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, इक्वल्स टू -4j माइनस k। ओके, ये आंसर हमारा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बट ये सब यूज होंगे आगे आपको। इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू i प्लस जे प्लस 2k, i प्लस जे प्लस 2k। तो क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए, इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस 1 प्लस 4, ये कितना हो गया √6। सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज ए कैप, ए के ऊपर ऐसा एक कैप लगाना है आपको। ओके, इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन इट्स मॉड्यूलस। सो वेक्टर ए क्या है, i प्लस जे प्लस 2k, और ए मैग्नीट्यूड है, सॉरी मॉड्यूलस हो गया। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज क्या आ गया √6। सो ये आपका आंसर हो गया, या फिर आप लिख सकते हैं इसको 1/√6i प्लस 1/√6j प्लस 2/√6k। ये हमारा होगा फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। फिर से हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। और क्या गिवन है, पी एंड क्यू आर दी पॉइंट्स। ये पी पॉइंट आपका 1 2 3 एंड क्यू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 4 5 6। तो सबसे पहले पी क्यू वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। पी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर इक्वल्स टू x2 माइनस x1i, है ना, x2 माइनस x1i, और मीन्स 4 माइनस 1i प्लस 5 माइनस 2j प्लस 6 माइनस 3k। तो ये क्या आ गया हमारा, पी क्यू वेक्टर आ गया 3i प्लस 3j प्लस 3k। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा पी क्यू वेक्टर का, ये आ गया √9 प्लस 9 प्लस 9 मीन्स 3 टाइम्स 9 इक्वल्स टू 3√3, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ओके, 3√3 मैग्नीट्यूड। सो देयरफॉर यूनिट वेक्टर in the direction of PQ vector is denoted by
ये यूनिट वेक्टर पी क्यू के ऊपर कैप लगा दिया इक्वल्स टू वेक्टर पी क्यू अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर पी क्यू क्या आया था 3i प्लस 3j प्लस 3k डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड इज 3√3, 3 कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर गिवन वेक्टर्स a b फाइंड द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस b। ये दो वेक्टर दिए हुए a और b वेक्टर, और ये क्या क्या है 2i माइनस जे प्लस 2k, 2i माइनस जे प्लस 2k वेक्टर, और ये b वेक्टर है आपका माइनस आई प्लस जे माइनस के, माइनस आई प्लस जे और माइनस के। तो a प्लस बी वेक्टर, a प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर ले तो ये आ गया i माइनस जे प्लस जे, तो ये कैंसिल आउट, 2k माइनस के इज प्लस के। लेट c इक्वल्स टू a प्लस बी को एक दूसरा वेक्टर ले लिया हमने c वेक्टर। ओके, ये क्या हो गया i प्लस के, तो इसका c का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √1 प्लस 1 मीन्स √2। देयरफॉर यूनिट वेक्टर in the direction of a plus b equals to c vector is unit vector c equals to vector c upon its magnitude। तो c वेक्टर क्या है i प्लस k और इसका मैग्नीट्यूड है √2, सो इट विल बी 1/√2i प्लस 1/√2k। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i माइनस जे प्लस 2k विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। तो इस वेक्टर को सपोज हम a वेक्टर लिख लेते हैं जो कि गिवन वेक्टर है 5i माइनस जे प्लस 2k एंड इट्स मैग्नीट्यूड विल बी √5 स्क्वायर 25 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, 5 25 प्लस 1 26 प्लस 4 ये आ गया 30। ओके, सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाई √30। therefore required vector of magnitude 8 units in the direction of this given vector a vector is equals to 8 into unit vector a। ये सब आगे यूज़ होंगे आपके, तो बहुत केयरफुली इनको सॉल्व करिए और समझिए कि कैसे सॉल्व करना है, इनका एप्लीकेशन आएगा, इनका यूज़ आएगा आगे बहुत। सो 8 इंटू यूनिट वेक्टर क्या आया था 5i माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाई √30। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 40/√30i माइनस 8/√30j ब्रैकेट ओपन कर ले रहे हैं प्लस 16/√30k। ओके, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, वी हैव टू शो दैट दिस टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। कोलिनियर है मीन्स इनमें कुछ रिलेशन मिलेगा आपको। ओके, कुछ ना कुछ रिलेशन आपको मिलेगा इसमें। तो देखते हैं कि इसको हम रिलेशन कैसे इसको शो कर सकते हैं इनके बीच में। तो ये ए और बी वेक्टर गिवन है आपको, ठीक। सो बी वेक्टर इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से सिंस बी वेक्टर इक्वल्स टू -4i प्लस 6j
-8k। यहाँ से आप -2 कॉमन ले लेते हैं, देन वी गेट 2i -3j और +4k। तो ये क्या हुआ, ये -2, ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर। सो बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या मिला, -2a वेक्टर। इट मीन्स बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए, वेयर लैम्डा इक्वल्स टू क्या मिला, -2। तो इस तरीके से कोई भी रिलेशन आपको मिल जाए, देन दी गिवन टू वेक्टर्स विल बी कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या है, वेक्टर आपका i + 2j + 3k, i + 2j + 3k। डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं इसके। तो इसके डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या फॉर्मूला था, L इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, a/√sum of a², m इक्वल्स टू b/√sum of a² and n इक्वल्स टू c/√sum of a²। और यू कैन राइट a/मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अच्छा, ए बी सी, ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये वेक्टर ए, ये ए बी सी यहाँ पे क्या डायरेक्शन रेशोस है, ठीक है। आप इसको a1 b1 c1 भी लिख सकते हैं। और m इक्वल्स टू आ जाएगा b/मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड n इक्वल्स टू c/मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं पहले। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 + 4 + 9, तो कितना आ गया, √14। तो इसके डायरेक्शन रेशियो कोसाइन क्या हो जाएंगे, a/a मीन्स व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ i कितना है, 1, सो 1/√14। और ये क्या आ जाएगा, 2/√14, और ये मिल गया हमको 3/√14। ओके, यही क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। जो i j के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो डायरेक्शन रेशोस होते हैं। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, तो पहले हमको ए बी वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। सो ए बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, x2 - x1 i मीन्स -1 i प्लस -2 j प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस प्लस हो जाएगा +3k। सो दिस इज -2i -4j और ये हो गया +4k। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, दिस विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, दिस विल बी इक्वल्स टू 4 + 16 इक्वल्स टू √32 + 4 36 मीन्स ये क्या आ गया 6। सो DC's डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या क्या हो जाएंगे, -2 मैग्नीट्यूड मीन्स 6 और -4 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी 6, 4/6 मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू -1/3 -2/3 2/3। ओके, इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है सब। क्वेश्चन नंबर 14 इज so that the vector I + j + k is equally inclined to the axis OX, OY and OZ। तो ये सपोज ये वेक्टर A है ये, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। ये क्या आएगा, √1 + 1 + 1 इक्वल्स टू √3। सो DC's डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर A R क्या क्या आ जाएगा, 1/√3 1/√3 1/√3 मीन्स ये LMN आ गया और cos अल्फ़ा cos बीटा cos गामा आ गया। सो cos अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/√3। सो अल्फ़ा इक्वल्स टू ये एंगल क्या आ गया, cos इनवर्स 1/√3। और सेम आपको बीटा और गामा मिलेगा, बीटा विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/√3 एंड गामा इज ऑल्सो cos इनवर्स -1/√3। ओके, सो दैट्स वाई अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा and alpha beta gamma are the angles made by the vector with the positive direction of x, y and z axis, means with the direction of OX, OY and
ओ जेड, तो ये तीनों इक्वल आ रहा है, दैट्स व्हाई द गिवन वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r which divides the line joining 2 points P and Q whose position vectors are given respectively in the ratio 2:1। तो जब इंटरनली डिवाइड कर रहा तब इसका हमको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। ओके, मीन्स यहाँ पर ये P है, ये Q है, यहाँ पर एक पॉइंट R है, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। ओके, 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो इस R का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो बाइसेक्शन फार्मूला OR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू OQ प्लस 1 इंटू OP डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। सो 2 इंटू OQ क्या है हमारे पास, माइनस आई प्लस जे प्लस के और प्लस 1 इंटू OP इक्वल्स टू आई प्लस 2j माइनस के। ओके, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा, ये आ गया -2i प्लस 2j प्लस 2k। ओके, और यहाँ ये हो गया i प्लस 2j माइनस के, i प्लस 2j माइनस के डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करने से आ जाएगा -2i प्लस i माइनस i प्लस 4j और प्लस के डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा होगा जब इंटरनल डिवीज़न के केस में आंसर। और जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो ये क्या आ जाएगा, OR इक्वल्स टू 2OQ माइनस 1 OP वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। ओके, तो ये इसको इसी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। तो सबसे पहले हम इसके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। OP इक्वल्स टू आ गया 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड OQ वेक्टर विल बी 4i प्लस j माइनस 2k। सो मिड पॉइंट ऑफ let R be the midpoint, R be the midpoint of PQ vector. So position vector of R is given by OR equals to OP plus OQ by 2। तो OP plus OQ कर लीजिए 6i और 3j plus j 4j and 4k minus 2k plus 2k divided by 2 means this is 3i plus 2j plus k। ओके, ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, so that the points A, B and C with position vector A, B and C respectively form the vertices of a right angle triangle। okay, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। अब हमको ये पता नहीं है कि कौन सा एंगल कौन से पॉइंट पे राइट एंगल बनेगा हम। ओके, तो जस्ट एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, क्योंकि किस 90 डिग्री हम कहाँ पे लेंगे, ABC को लेंगे, एंगल B को लेंगे, C को लेंगे, A को लेंगे, अभी हमको नहीं मालूम है। ओके, ये तो गिवन क्या है हमको, ABC so that the points A, B, C with position vectors means A, B, कैपिटल A, B और C के पोजीशन वेक्टर है। ये A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर। तो इसको आप OA वेक्टर लिख लीजिए, ये OB वेक्टर हो गया। ओके, ये OB वेक्टर हो गया और ये हो गया आपका C वेक्टर मीन्स OC वेक्टर। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, स्क्वायर एंड सम ऑफ टू साइड्स विल बी equals to the square of third side, square and sum of two sides will be square of third side। तो तीनों साइड का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, AB, BC और AC ये तीनों वेक्टर को फाइंड करना पड़ेगा। सो AB वेक्टर इक्वल्स टू OB माइनस OA वेक्टर
और ओ बी माइनस ओ ए क्या आ जाएगा यहाँ से देखिए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से ओ बी माइनस ओ ए करेंगे आप तो 2i माइनस 3i माइनस आई माइनस जे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस जे प्लस 3j प्लस 4j मीन्स 3j और प्लस के प्लस 4k, ये आ गया आपका 5k। ओके, चेक कर लीजिए 2i माइनस 3i माइनस आई और प्लस 3j प्लस 5k। सिमिलर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इक्वल टू रूट ओवर, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25, तो कितना हो गया ये 10 प्लस 25 रूट 35। सिमिलरली बी सी वैक्टर, बी सी इक्वल्स टू ओ सी माइनस ओ बी वैक्टर, ओ सी माइनस ओ बी, तो i माइनस 2i, यहाँ से देखिए 3 में से 2 माइनस करेंगे i माइनस 2i, तो ये आ गया माइनस i माइनस 3j प्लस j माइनस 2j और माइनस 5k माइनस k मीन्स माइनस 6k। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इक्वल्स टू रूट ओवर 1 प्लस 4 प्लस 36, ये कितना आ गया रूट ओवर 1 प्लस 4 प्लस 36, ये आ गया 41। ओके, और थर्ड साइड देखते हैं हम, ए बी बी सी, ये ए बी फाइंड किया, ये बी सी फाइंड किया, एंड नेक्स्ट ए सी वैक्टर इक्वल्स टू ओ सी माइनस ओ ए। आप ए सी फाइंड करिए, सी ए फाइंड करिए, चलेगा। ओके, सो ओ सी माइनस ओ ए, तो ओ सी माइनस ओ ए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आई किसको थर्ड और फर्स्ट और थर्ड से ओ सी माइनस ओ ए, आई माइनस 3i, आई माइनस 3i, आई माइनस 3i क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लें ए सी वैक्टर इक्वल्स टू आई माइनस 3i माइनस 2i माइनस 2i, ओके, माइनस 3j प्लस 4j इस प्लस j और माइनस 5k प्लस 4k इज माइनस k, मीन्स ये आया माइनस 2i प्लस j माइनस k, माइनस 2i प्लस j और क्या है माइनस 2i प्लस j माइनस k, माइनस k। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी, मैग्नीट्यूड मीन्स क्या आ रहा है, ये साइड्स के लेंथ आ रहे हैं, ट्रायंगल के साइड्स के लेंथ आ रहा है, ये हो गया 4 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स रूट 6। तो अब देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है हमको, कुछ रिलेशन मिल रहा है, मीन्स ए बी स्क्वायर मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ साइड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर 35 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मीन्स रूट 35 प्लस 6, ये कितना आया 41 इक्वल्स टू रूट ओवर सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी स्क्वायर। ओके, मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, और सिंपली यू कैन राइट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसको थोड़ा सा ठीक कर लें, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल गया हमको बी सी स्क्वायर। ओके, तो ये कैसा मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल कर रहा है ये, तो कौन सा एंगल इसका 90 डिग्री होगा। अब ये तो क्लियर हो गया कि दिस इज राइट वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी आर दी वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो कौन सा एंगल पे 90 डिग्री बनेगा, तो कौन से पॉइंट पे, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, कहाँ ए यहाँ पर होगा। ओके, ये ए, अब आप इसको बी ले लें, इसको सी ले लें, सो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, दैट्स वाई ए बी एंड सी आर vertices of a right angle triangle, are vertices of a right angle triangle, of a right angle triangle। ओके, और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कौन सा राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, तो किस पर, कौन से वर्टेक्स पर बनेगा, ए पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वी हैव टू सेलेक्ट विच वन इज़ नॉट ट्रू। ओके, ये ट्रायंगल गिवन है ए बी सी,
ए बी सी ट्रायंगल गिवन है, इसमें डायरेक्शंस भी दिए हुए ए बी बी सी और ए सी का डायरेक्शन अपोजिट है। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इफ वी टेक इन साइक्लिक ऑर्डर देन सम ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 0। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में जब भी आप ऐसा लेंगे, ये इसमें सपोज ये ए बी सी हो गया, सो ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट तो आपका राइट होगा, ओके, ये करेक्ट ट्रू है, ये दिस इज ट्रू। सेकंड, सी ए वैक्टर को माइनस ए सी वैक्टर लिखा है बस इसमें, तो ये भी आपका ट्रू होगा। थर्ड, ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए, अब आपको डी ऑप्शन जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0 ये ट्रू है, तो माइनस सी ए रखने से क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा। ठीक है, और डी में भी आप चेक कर सकते हैं, ए बी, ये बी आपका ट्रू है, बी सी को माइनस सी भी रखा है, तो ये भी ट्रू है। तो अल्टीमेटली कौन सा, ये एक फॉल्स है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको ऑब्जेक्टिव है, इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है हमको ये इसमें बताना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, ये 19 ए एंड बी आर कोलिनियर गिवन है, कोलिनियर गिवन। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बी इक्वल्स टू लैम्डा ए, फर्स्ट ऑप्शन ए है बी इक्वल्स टू लैम्डा ए, ओके, बी वेक्टर बी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, ये हमने एक क्वेश्चन में देखा था। ओके, तो ये तो ट्रू है, बी इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर आएगा ही, बी और ए में कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा आपको, बी में भी एक रिलेशन बन रहा है ए इक्वल्स टू प्लस माइनस बी वेक्टर, देन इफ दिस इज ट्रू ऑल्सो करेक्ट होगा। थर्ड, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, जब ये कोलिनियर है, अब देखिए बी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर और ए इक्वल्स टू बी और ए इक्वल्स टू माइनस बी, तो इनके कंपोनेंट्स का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा हमेशा। सो द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनेट। ओके, तो ये सी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो यही क्या होगा, सी, दिस इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। और यही आपको फाइंड करना था विच वन इज इनकरेक्ट, तो इसमें कौन सा होगा, 19 का आंसर क्या आएगा, सी। ये 18 में भी सी और 19 में भी ऑप्शन क्या आएगा, सी। तो ये हमारा 10.1 और 10.2 कंप्लीट होता है। साथ ही मैंने कोशिश किया आप लोगों को कि इसका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझाऊं। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखकर इसके कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसके स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट सॉरी, जहाँ से कि क्वेश्चन आपको हमेशा आते हैं उसको देखेंगे। ओके।